Hello friends, my dear students. Today we are going to discuss on the topic pathophysiology of Alzheimer's disease. I am Saraswati Patel, research scholar from Banasthali Vidyapeeth. So, Alzheimer's mainly affect brain. Here I have shown a brain section. This is normal brain section and this is Alzheimer's brain section जिन्हें Alzheimer हुआ है. You can see the difference in their structure. See, this is very intact and full and this part of brain is shrinked. यहाँ पे हमने एक सेक्शन शो किया है ब्रेन का और यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज का भी एक सेक्शन शो किया है ब्रेन का. ये न्यूरॉन्स है, these are neurons and these are very much intact and natural. But here you can see that these neurons have formed neurofibrillary tangles and also amyloid plaques have been generated. So these two terms are new and these are mainly responsible for the pathophysiology of Alzheimer's disease. Okay, so we will study in detail. Coming to the content part, what are the contents? Introduction, risk factors, symptoms, pathophysiology, diagnosis, treatment and references. So coming to the introduction part. अल्जाइमर्स डिजीज क्या है? ये इरिवर्सिबल न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज है that involves the progressive decline in cognitive function. That means in this disease neurons का degeneration होता है, okay? और यहाँ पे progressive loss होता है cognitive function का. अब ये cognitive function क्या है? This is a mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thoughts. ओके, दैट मीन्स जहाँ से हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, जहाँ से हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारी मेमोरी पावर होती है, उस चीज को ये डिक्लाइन करता है अल्जाइमर्स डिजीज ड्यू टू न्यूरॉन्स डीजनरेशन. ओके, it is a very common disease and first affects our memory. As the disease gets worse, it can also affect the other parts of our brain such as thinking power, attention, planning and language too. So it is the most common cause of dementia. Okay, we have used the term dementia. Dementia क्या है? This is a syndrome. Syndrome क्या होता है? ये एक combination of medical problems होती है. That means dementia कोई एक disease नहीं है. ये multiple combinations of mental problems है. Okay, so dementia is a syndrome characterized by disturbance of multiple brain functions including memory, thinking, orientation, comprehension, calculation, learning capacity, language and judgment too. ओके, सो यहाँ से हमने क्या समझा? अल्जाइमर डिजीज ब्रेन में होता है जहाँ पे न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है जो कि प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करते हैं हमारी कोग्निटिव फंक्शन को, मतलब लर्निंग मेमोरी, लर्निंग पार्ट जो हमारी होती है उसको ये अफेक्ट करती है अल्जाइमर्स डिजीज. ओके, सो it mainly affects the older adults. Okay, older adults means जो 60 years से above है उनको mainly affect करता है, but ये 30s और 40s एज वाले people को भी affect कर सकता है. अगर Alzheimer's disease under age 65 हुआ है then it is known as early onset or it is called as younger onset too. Okay, a very small number of people with Alzheimer's disease have the early onset form. So, what are the areas of brain that are affected by Alzheimer's disease? 3 parts. First, frontal lobe, which is related to intelligence, judgment and behavior. Second is parietal lobe, that is related to our language. And third is temporal lobe, that is related to our memory. Hippocampus. इसे मैंने एपिलेप्सी के केस में भी डिस्कस किया है. ओके, सो तो ये क्या है? ये अल्जाइमर्स डिजीज इन 3 पार्ट को मेनली अफेक्ट करता है. इसका मतलब कि सिम्टम्स जो आएंगे हमारे वो भी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, जजमेंट, बिहेवियर, लैंग्वेज एंड मेमोरी के होंगे. ओके, सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर डिजीज? रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? वैसी चीजें, वैसा बिहेवियर जो कि अल्जाइमर डिजीज को और क्रिटिकल कर दे, जो कि उस डिजीज को लाने में हेल्प करे. Those are risk factors that help to create
or to progress towards disease, that is risk factors. So first is family history. It can be gender, it can be due to head injury. Okay, neuron degeneration can be due to environmental toxins or high blood pressure or high cholesterol level. That accumulation of cholesterol occurs in brain. Okay, so it can also lead to neurodegeneration. Next is low education level, our lifestyle or age. So what can be the symptoms of Alzheimer disease? आप देख सकते हो एक ओल्ड एज का पर्सन है, उसे ये सारे सिम्टम्स ये वो शो कर रहा है. फर्स्ट क्या है, कंफ्यूजन होगा उसे विद टाइम एंड लोकेशन कि क्या टाइम हुआ है, वो कहाँ है. ही कैन फॉरगेट ओके. सेकंड इज विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज. दैट मीन्स उसे, क्योंकि वो भूल जाएगा, उसकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, सो ही विल चूज टू लिव अलोन और डू हिज एक्टिविटी अलोन रादर देन टू डू इन अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, नेक्स्ट इज डिफिकल्टी कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क. मतलब जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी जो उसे अपना टास्क कंप्लीट करना है, ही वॉन्ट बी केपेबल. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मिसप्लेसिंग आइटम्स. ऐसा होता है कहीं सामान रख दिया, कहीं भूल गए. नेक्स्ट इज मेमोरी लॉस हो सकती है. पुअर जजमेंट, ही वॉन्ट बी एबल टू गिव हिज जजमेंट ऑन अ प्रॉपर टॉक. ओके, अनफाउंडेड इमोशंस, फ्रिक्वेंट इमोशन चेंज हो सकता है. नेक्स्ट इज ट्रबल विद इमेजेस एंड स्पेसेस. मिरर देख करके वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका इमेज है. ओके, फिर डिफिकल्टी विद वर्ड्स, बोल नहीं पाएंगे प्रॉपर, मतलब, और ही वॉन्ट रिमेम्बर व्हाट टू यूज प्रॉपर वर्ड टू स्पीक अ सेंटेंस. Okay, so coming to our main part, that is pathophysiology. This is very important, so listen carefully. This disease was first identified by Dr. Alois Alzheimer in 1906. Okay, so he described two hallmarks of the Alzheimer disease, that is plaques and tangles. Okay, अब ये दो words हैं, plaques और tangles, यही पैथोफिजियोलॉजी है हमारे अल्जाइमर के. इसे हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, बट ये दोनों हैं क्या. फर्स्ट, प्लेक्स क्या है, ये एक डिपोजिशन है किसका, प्रोटीन का. कौन सी प्रोटीन, बीटा अमाइलॉइड. ओके, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन है जिसे हम ए बीटा भी कहते हैं. व्हेन दीज molecules, when these beta amyloid or A beta molecules accumulate and stick together, it is toxic to brain cells. तो क्या समझ आया, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जब वो एक साथ स्टिक हो जाएंगे, तो वो बीटा एमाइलॉइड का ग्रुप वो टॉक्सिक है ब्रेन सेल्स के लिए. ओके, नेक्स्ट इज टैंगल्स. टैंगल्स क्या है, दीज आर फाइबर क्लम्प्स. किसका फाइबर क्लम्प्स, एक प्रोटीन टाउ का. टाउ प्रोटीन का फाइबर क्लम्प्स, ये क्या करते हैं, ये इवेंचुअली चोक करते हैं लिविंग ब्रेन सेल्स को. जो लाइव सेल्स हैं उसे ये चोक कर देंगे, उसे ये खत्म कर देंगे. अब जब वो ब्रेन सेल्स को उसने खत्म कर दिया, ठीक है, या वो डैमेज हो गया, तो वो पार्ट ब्रेन का श्रिंक हो जाएगा. ओके, जो स्टार्टिंग पेज में मैंने शो किया पिक्चर ब्रेन का, उसमें जो अल्जाइमर डिजीज का जो ब्रेन है वो आपने देखा है श्रिंक्ड है. ठीक है, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू टाउ प्रोटीन. ओके, सो अल्जाइमर डिजीज, अब ये प्लेक और टैंगल्स है, ये कैसे फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जब अल्जाइमर डिजीज होता है, वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे. जब अल्जाइमर डिजीज का अटैक होता है तो वो नर्व्स, ब्रेन सेल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को अटैक करती हैं. ठीक है, अब ये नर्व्स, ब्रेन सेल्स और न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्ट्रक्शन होगा. डिस्ट्रक्शन की वजह से प्रोटीन के क्लम्प्स फॉर्मेशन होंगे अराउंड ब्रेन सेल्स, जो लाइव ब्रेन सेल्स है उसके चारों तरफ. अब यही ब्रेन सेल्स को, ये जो क्लम्प्स है, इसे हम कहते हैं प्लेक्स और बंडल्स, और इसको हमने डिफाइन किया है. ठीक है, प्लेक्स और बंडल्स, किसके प्लेक्स बन रहे हैं और किसका बंडल बन रहा है. ठीक है, अब ये द प्रेजेंस ऑफ प्लेक्स एंड बंडल्स स्टार्ट्स टू डिस्ट्रॉय मोर कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन सेल्स व्हिच मेक्स द कंडीशन वर्स्ट. ओके, ये तो इस एक पार्ट को इसने डिस्ट्रॉय किया, अब साथ ही आसपास के भी ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये है हमारे मैकेनिज्म्स, जो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किसमें, अल्जाइमर्स डिजीज में। ये तो हमने देखा ए बीटा एमाइलॉइड बीटा का प्लेक फॉर्मेशन हो रहा था और टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो रहा था, ठीक है, प्लेक्स एंड टैंजल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये तीन चीज कैसे हो रहे हैं वो हम देखेंगे। तो क्या क्या मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट इज कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। हम इन मैकेनिज्म्स को इलैबोरेट में भी पढ़ेंगे, मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाया है। कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस से क्या होता है, रिडक्शन इन एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट इज मेटल आयन हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से मेटल डिसहोमियोस्टेसिस होती है। अब यहाँ पे ये जो रिडक्शन हो रहा है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, इसकी वजह से फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन जो हो रहा है एमाइलॉइड प्रोटीन्स का उसकी वजह से, एंड मेटल डिसहोमियोस्टेसिस leads to they results in Alzheimer's disease। इन 4 फैक्टर्स की वजह से, इन 4 मैकेनिज्म्स की वजह से क्या होता है, न्यूरोनल लॉस और एट्रोफी इन टेम्पोफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये एट्रोफी क्या है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है और ब्रेकडाउन होता है टिश्यूज का, जो कि एपोप्टोसिस कॉज करती है, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, न्यूरोनल लॉस हुआ और दूसरा एपोप्टोसिस हो रहा है, कहाँ पे, टेम्पोफ्रंटल कॉर्टेक्स में, वो जो पार्ट मैंने शो किया है आपको, जो अल्जाइमर डिजीज ब्रेन को मोस्टली अफेक्ट करती है, ठीक है। तो वहां पे एट्रोफी होगी। अब न्यूरोनल लॉस भी हो गया, एट्रोफी भी हो गया, एंड दीज टू मैकेनिज्म विल लीड टू इंफ्लेमेशन, एमाइलॉइड बीटा प्लेक्स और टाउ प्रोटीन जनरेशन, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होंगे। ओके, अब कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस में क्या होता है ये हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस में क्या होता है, मेनली ये 20 इयर्स बैक इस हाइपोथेसिस को दिया गया था। इसमें एसिटाइल कोलिन का डिसफंक्शन होता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। जिस न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन है वहां पे उसका डिसफंक्शन हुआ तो वो अल्जाइमर डिजीज को कॉज करेंगे। Besides acetylcholine, there are more neurotransmitters. When their imbalances takes place in the brain, they cause Alzheimer's disease. Like in next sentence, acetylcholine, noradrenaline, serotonin, GABA, ये सब मैंने आपको बताया है सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी के टॉपिक में इनका मैकेनिज्म, ओके, आप वहां से रेफर कर सकते हो। एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लूटामेट, सोमैटोस्टैटिन, न्यूरोपेप्टाइड 5 और सब्सटेंस की, ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन कॉज करते हैं, ओके। these neurotransmitters, their imbalances in brain leads to Alzheimer disease, okay। Next is एसिटाइलकोलिन और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज आर द मोस्ट प्रोफाउंड। इनमें अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में देखा गया है कि एसिटाइलकोलिन और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज का मैक्सिमम रिडक्शन है। इससे प्रूव किया गया कि एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कम हो जाए तो वो अल्जाइमर डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट इज न्यूरोनल लॉस। अगर न्यूरोनल लॉस in the basal forebrain, which is the major reason from which कोलिनर्जिक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेट, बेसल फोरब्रेन से सबसे ज्यादा कोलिनर्जिक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेट होती हैं। अगर वहां पे न्यूरॉन्स का लॉस हो गया तो ये भी अल्टीमेटली अल्जाइमर कॉज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाइपोथेसिस। ये तो आप जानते हो, जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा और फ्री रेडिकल्स अल्टीमेटली लीड करते हैं, कॉज करते हैं डिजीज को, जैसे कि फेरस, एल्यूमिनियम, Ag, मरकरी, ये अगर ब्रेन में बढ़ जाते हैं तो ये भी फ्री रेडिकल का जनरेशन करते हैं। इंक्रीज लिपिड पैराऑक्सीडेशन और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डिक्रीज और रिडक्शन इन द एडी ब्रेन, ये भी कॉज करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। फिर इंक्रीज्ड प्रोटीन एंड डीएनए ऑक्सीडेशन इन एडी ब्रेन, ओके, डिमिनिश्ड एनर्जी मेटाबॉलिज्म और डिक्रीज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज,
ये भी अल्जाइमर डिजीज के ब्रेन में देखा गया है। फिर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट मेलानोडाइल्डिहाइड कार्बोनाइल्स पेरोक्सीनाइट्राइड, इनके इम्बैलेंसेस या इनके जनरेशन की वजह से ये फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड, ये भी फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होता है। Hyperphosphorylated tau protein hypothesis. I have tried to make you understand by making diagram, okay, by myself. So यहाँ देखो क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो रेड कलर की मार्किंग है ये टाउ प्रोटीन है। ओके, नॉर्मली माइक्रोट्यूब्यूल से टाउ प्रोटीन्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है, उस समय ये स्टेबलाइज्ड कंडीशन में है। okay? फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है, टाउ प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा। जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये टाउ प्रोटीन डीस्टेबलाइज्ड हो जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, ओके, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से डिसोसिएट होने लग जाएंगे। अब जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे फिर ये एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, ये जो टाउ प्रोटीन्स है ये एग्रीगेट होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, डाइमर का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ओलिगोमर का फॉर्मेशन होगा। तो जब दो से ज्यादा कंबाइन होंगे, ठीक है, ओलिगोमर फॉर्म हो गया, इसके बाद ये पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट फॉर्म करेंगे, फिर ये फिलामेंट भी बहुत सारे बनने लग जाएंगे। तो दैट विल लीड टू न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स, दिस इज नोन एज न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। ये फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था इंट्रोडक्शन के पहले, फर्स्ट स्लाइड में, इंट्रोडक्शन स्लाइड में, उसमें न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स दिखाया था, ठीक है, तो ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स वही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स रिजल्ट करते हैं अल्जाइमर डिजीज में। यहाँ देखो लिखा है टाउ डिसोसिएट्स फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स लीडिंग टू देयर डीस्टेबलाइजेशन, ओके, इट देन एग्रीगेट्स इनटू ओलिगोमर्स, पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स एंड अल्टीमेटली न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। तो जब हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा टाउ प्रोटीन का तो वो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स का जनरेशन करेंगे जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होगा, ठीक है, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाएगा। ओके, लास्ट वाज मेटल आयन हाइपोथेसिस। इसमें बस ये है कि मेटल आयंस का इंटरेक्शन होता है अमाइलॉइड प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से एडी न्यूरोपैथोजेनेसिस होती है। अब जैसे मेटल से हमारे कॉपर है, जिंक है हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्रेन में, तो वो क्या करती है, वो मेटल आयंस अमाइलॉइड बीटा के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उनके बीच में इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से न्यूरो डिजेनरेशन होती है। ओके, सो वो तो पैथोफिजियोलॉजी था। अब है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेंगे कि अल्जाइमर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पेशेंट को अल्जाइमर हुआ है उसके रिलेटिव से पूछा जाएगा अबाउट व्हाट, उनके हेल्थ इशू के बारे में, use of prescription, over the counter medicines, what medicines they have been prescribed earlier, their diet, their past medical problems, their family history, or their daily activities, change in the daily activities and their behavior and personality change. ये तो नॉर्मल हो गया वर्बली। नेक्स्ट इज उस पेशेंट को टेस्ट देना होगा रिगार्डिंग मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, काउंटिंग एंड लैंग्वेज, ये उन्हें टेस्ट देना होगा। ओके, जब ये टेस्ट हो जाता है उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है इन विच डॉक्टर्स टेक सैंपल्स ऑफ ब्लड एंड यूरिन and they identify other possible cause of the problem, what can it be, and at last their brain are scanned and then CT scan can be performed, then MRI or PET is performed to rule out other possible causes for symptoms. Okay, तो डायग्नोसिस भी हो गई। अब है ट्रीटमेंट एंड ड्रग थेरेपी। First of all, there is no known cure for Alzheimer. Why? Because the death of brain cells cannot be reversed. This should be kept in mind. The death of brain cells cannot be reversed. Neurodegeneration जब हो गया तो हो गया, उसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ब्रेन सेल्स रीजनरेट नहीं करती है। But however, there are therapeutic interventions that can make it easier for people to live with the disease. उनकी जो सिम्टम्स आते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज की जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम सप्रेस कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। फॉर दैट मेडिसिन्स आर अवेलेबल, बट
no drug is available that can modify the disease. Okay, so what are the drugs that have been approved? These are acetylcholine esterase inhibitors, donepezil, rivastigmine, tecrine. A different kind of drug is also available, memantine. Their mechanism of action is different. It can be used alone or in combination. So I have made a chart for you all, so you can go through easily with this. डोनेपेजिल, रिवास्टिकमिन, गैलेंटामाइन, और ये एक क्लास के ही ड्रग है. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. ये क्या करते हैं, ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ और इनहिबिट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन को ये टूटने नहीं देते हैं. ओके, इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. और मेमेंटीन एक नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है. ये बाइंड करता है एनएमडीए रिसेप्टर के साथ. ओके, और ग्लूटामेट को रेगुलेट करते हैं. इस मेमेंटीन को डोनेपेजिल के साथ भी दिया जा सकता है, जो कि ये दूसरे कैटेगरी ऑफ का ड्रग है. ठीक है, इससे इनका ब्रांड नेम है, लाइक डोनेपेजिल इज नेम्ड एज एरिसेप्ट एंड रिवास्टिकमिन एज एक्सेलॉन. ओके, देयर डोजेस हैव बीन prescribed and for what stages, like symptoms is mild or moderate or severe. So which drug should be used in case of mild or moderate or severe condition? Like memantine or memantine combination with donepezil can be used in severe condition. Okay, but rivastigmine can't be used in severe condition. It is not effective. Okay, and their side effects are also mentioned here. So these are the references. I have followed more. I have searched more Google, so you can also go through with that. Okay, so hope you have understood the topic, or feel free to ask any question. You can comment on the section. And thank you. Be happy, not because everything is good, but because you can see the good side of everything.